తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడం ఖాయమని ఏఐసీసీ అధికార ప్రతినిధి షమా మొహమ్మద్ తెలిపారు. శుక్రవారం పరిగిలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి డాక్టర్ టి రామ్మోహన్ రెడ్డి నివాసంలో పత్రికా సమావేశంలో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్ల కోసం తులం బంగారం ఇస్తున్నామని, అధికారంలోకి రాగానే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు 2 లక్షలు భర్తీ చేస్తామన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన మాట తప్పకుండా అమలు చేస్తుందని, దానికి నిదర్శనం కర్ణాటక రాష్ట్రమని అన్నారు. అనంతరం ప్రధాన కార్యదర్శి గఫార్ బేగ్ మాట్లాడుతూ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓటు వేస్తే బీజేపీ పార్టీకి వేసినట్టు అని అన్నారు. నేను కర్ణాటక నుంచి వచ్చాను, అక్కడ 5 గ్యారంటీ పథకాలు అమలవుతున్నాయని, ఇక్కడ తప్పకుండా 6 గ్యారంటీ పథకాలు అమలు చేస్తామని తెలిపారు. 30వ తేదీ ఖచ్చితంగా రామ్మోహన్ రెడ్డికి ఓటు వేసి గెలిపించాలని కోరారు. నియోజకవర్గం అనేది వ్యవసాయంతో ఆధారపడ్డటువంటి ప్రదేశం. అయితే ఇక్కడ గతంలో సాగునీటి ప్రాజెక్టులు మనం శాంక్షన్ చేయించినటువంటివి ప్రాణహిత చెవెళ్ళ కానీ, పాలమూరు రంగారెడ్డి కానీ, ఈ ప్రభుత్వం మన జిల్లాలోనే పనులు స్టార్ట్ చేయలేదు. ముఖ్యమంత్రి వచ్చినప్పుడల్లా 2 నెలల్లో పూర్తి చేస్తా అంటాడు, ఇప్పుడేమో 1 సంవత్సరంలో పూర్తి చేస్తా అంటాడు. ఇప్పటికి 4 సార్లు అబద్ధాలు చెప్పిండు ముఖ్యమంత్రి. ఆయన కొడుకు కేటీఆర్ కూడా వచ్చినప్పుడల్లా అబద్ధాలు చెప్తున్నారు. గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మన చెవెళ్ళ దగ్గర, చందిప్ప దగ్గర ప్రాణహిత చెవెళ్ళ పనులు టనల్ లోపల నేను దిగిన, ఒక 200 మీటర్స్ డెప్త్లో అండర్ గ్రౌండ్ టనల్లో దిగిన. అక్కడ జేసీబీలు, టిప్పర్లు పనిచేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వం రైతులకు వ్యవసాయం గురించి ప్రతి నియోజకవర్గానికి 1,00,000 ఎకరాలు ఇస్తామని చెప్పి మేనిఫెస్టోలో పెట్టి 10 ఏళ్ల కాలం అయిన తర్వాత కూడా మోసం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, మన ప్రాంతంలో ఉన్న రైతులకు 2018లో ముఖ్యమంత్రి ఏం చెప్పిండంటే 1,00,000 రూపాయలు రుణమాఫీ చేస్తా అని చెప్పిండు. 18 అయిపోయింది, 19 అయిపోయింది, 20 అయిపోయింది, 21 అయిపోయింది, 22 అయిపోయింది, 23 వచ్చింది. మొన్న మధ్య కాలం లోపల కేవలం 25% మాత్రమే మాఫ్ చేశాను. 25% అంటే ఒక 50,000 మాఫ్ చేశాను. కానీ 1,00,000 రూపాయల అప్పు ఈ 5 ఏళ్లలో 2 లక్షలు అయిపోయింది. దానికి రాహుల్ గాంధీ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే 2 లక్షల రుణమాఫీ చేస్తానని స్పష్టంగా చెప్పిండు. భూమి లేని నిరుపేదలకు కూడా ఒకరొకరికి 12,000 రూపాయలు, 24,000 రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పిండు. అదేవిధంగా రైతు భరోసా పథకం కింద ఒక్కొక్క రైతుకు 15,000 రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పిండు. ఈ ప్రభుత్వం 10,000 రూపాయలు ఇస్తుంది, కానీ ఒక చేతితో ఇట్లా ఇస్తుంది, ఒక చేతితో ఖర్చు అయిపోతున్నాయి. ఎందుకంటే ఫర్టిలైజర్ల ధరలు పెరిగిపోయినాయి, క్రిమి సంహారక మందుల ధరలు పెరిగిపోయినాయి. రాహుల్ గాంధీ గారు ఇంకొక మాట చెప్పారు, ఏంటంటే ఉపాధి హామీ పథకాన్ని వ్యవసాయానికి అనుసంధానం చేస్తామన్నాడు. దాని మూలంగా ఏంటంటే రైతుల పొలాల్లో ఉపాధి హామీ కూలీలు పనిచేస్తే దానికి సంబంధించిన వేతనాలు ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం నుంచి ఈ యొక్క కూలీలు డబ్బులు చెల్లించడం జరుగుతుంది. ఇంత మంచి కార్యక్రమాలు మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం లోపల రాబోతున్నాయి. కాబట్టి అందరూ కూడా చేతి గుర్తుకు ఓటేసి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని తీసుకురావాలని చెప్పి తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా డాక్టర్ షమా మొహమ్మద్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. राममोहन रेड्डी जी बेग साहब एआईसीसी का ऑब्जर्वर है, और जो हमारे कार्यकर्ता जो है यहाँ, और मेरे प्रिय पत्रकार, आज मैं थोड़ी ही बात करूँगी, क्योंकि मुझे मुद्दा क्या है कि जो किसानों के विषय, किसान जो एक चीज़ होता है कि जब हमारा जो क्रॉप ख़राब होता है उसमें इंश्योरेंस चाहिए. एक ही राज्य है हिंदुस्तान में इंश्योरेंस किसानों को नहीं देता है, वो है तेलंगाना और केसीआर की सरकार. बाकी सब राज्य क्रॉप के लिए इंश्योरेंस देता है, ये नहीं देता है. दूसरी बात है, उन्होंने वायदे किया है कि 26 लाख टन फर्टिलाइज़र मुफ्त में देंगे, 55 लाख किसानों को नहीं दिया है. और जो जिसके पास ज़मीन नहीं है, जो किसान के पास ज़मीन नहीं लेकिन किराए पे वो ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए भी कुछ नहीं है केसीआर के अंदर. केसीआर आने के बाद 90% ज़्यादा किसानों में कर्जा हो गया है. किसान के घर में 90% किसानों के घर में कर्जा हो गया है. और आपको पता होना चाहिए, राजशेखर रेड्डी के समय हमने 11,000 करोड़ का कर्ज माफ़ी किया था किसानों का. और हमको पता है कि यूपीए की सरकार भी 2008 में 60,000 करोड़ का कर्जा माफ़ किया पूरे हिंदुस्तान के किसानों का.
तो वो है कांग्रेस पार्टी। बीजेपी भी कभी कर्जा माफ नहीं की है। कांग्रेस पार्टी पहले सोचते हैं किसानों के बारे में, जो गरीब है उसके बारे में। और आप सबको पता है धरनी पोर्टल के बारे में। धरनी पोर्टल में 20 लाख किसानों का जो धरती है, भूमि है, केसीआर बिजनेस लोगों को दे रहे हैं। उनका जो बिजनेस करने वाले दोस्त है उनको लेकर दे रहा है, और अभी उनके पास उसके पेपर नहीं, कुछ भी नहीं। हम आने के बाद ये धरनी पोर्टल के ऊपर एक जांच होगी, ये बंद करेंगे जो भी हो रहा है। और आपको सब पता है कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जिसमें 40 लाख एरिया में उसको इरिगेशन मिलना था और 20 डिस्ट्रिक्ट को ड्रिंकिंग वाटर मिलना था, पीने का पानी। क्या हुआ उस प्रोजेक्ट में? कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा उस प्रोजेक्ट में गलती है। किसने कहा है? डैम सेफ्टी अथॉरिटी आके कहा है उस प्रोजेक्ट में बहुत बहुत खराब है ये प्रोजेक्ट, इसमें घोटाला है। इसका जो पियर्स है जो पानी में डूब गया है, पूरा एक और बार बनाना है। 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 1.5 लाख करोड़ हो गया। कैसे? किसने कहा ये पैसा? तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और हमने क्या किया, हमारे जो घोषणाओं में हमने किसानों को, हमने 6 घोषणाएं की, लेकिन मैं पहले तो किसानों के बारे में बोल रही हूँ। उसमें 15,000 किसान जिसके पास भूमि है और जो किराए में ले रहे हैं भूमि, उसके लिए 15,000 साल में देंगे। और जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, किराए पे नहीं है, उसको 12,000 मिल रहा है। और मैं आज पेपर में सुन रहा है कि केसीआर जो 10,000 से 16 दे रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा सुना तब उसके बाद, और हम आने के बाद जिसका कर्ज है 2 लाख, कोई किसान का कर्ज है 2 लाख, वो हम माफ करेंगे। और किसी भी किसान को 3 लाख का कर्ज कर्ज ले सकते हैं बिना इंटरेस्ट से, वो भी हम कर रहे हैं। ठीक है। और इस घोषणाओं में पैडी के लिए हम 500 और दे रहे हैं। और बाकी जो 6 घोषणाएं हैं उसमें महिलाओं के लिए क्या है? महिलाओं के लिए उनके खाते में 2,500 रुपये हर महीने जाएंगे। जो गैस का दाम आपको पता है हिंदुस्तान में नंबर 1 तेलंगाना है, 1200, और वो हम 500 में देंगे। तीसरा, महिलाओं के लिए बस जो बहुत महंगा होता है कि एक छोटी फैमिली के लिए, वो भी बस महिलाओं के लिए फ्री है, मुफ्त में वो जा सकते हैं बस में। और उसके ऊपर हम कर रहे हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके खाते में पेंशन आएंगे 4,000, और 10 लाख उनको हेल्थ इंश्योरेंस में हम देंगे। जो बच्चे लोग हैं उनके कंप्यूटर के लिए, उनका पढ़ाई के लिए, उनके फीस के लिए, उनके बुक के लिए, उनको कहीं जाना होगा पढ़ाई के लिए, ट्यूशन के लिए, हम सालों 5 लाख देंगे। और जिसके पास घर नहीं है, इंदिरा इंदलू स्कीम, जिसके पास घर नहीं है उनके लिए, ज़मीन है जिसके पास घर नहीं है, हम 5 लाख का घर बना के दे देंगे। और जिसके पास ज़मीन भी नहीं है उनको हम ज़मीन दे के 5 लाख का घर दे रहे हैं। और इसके ऊपर जो बिजली है आपको 200 यूनिट पर फ्री मिलेगा। तो ये सब घोषणाएं हमने किया है। और आप लोग सोच रहे अरे केसीआर भी 2014 घोषणाएं की, 2018 किया है, कुछ पूरा नहीं हुआ, कांग्रेस क्यों करेगी? कांग्रेस करेगी क्योंकि बगल में कर्नाटक में ये घोषणाएं हमने जो बोला था, हमने जो कहा था, हमने किया है। तो कांग्रेस पार्टी जो बोलते हैं हम करते हैं। वहाँ 5 घोषणाएं थे, सब 5 है ना, 5 सब हमने पूरा किया है। और मुझे विश्वास नहीं है तो कर्नाटक का बेग साहब है यहाँ, गफार बेग साहब है, वो आपको बता सकते हो। तो 5 गारंटियाँ हमने पूरा किया है। और आपको पता है कि हिमाचल
के चुनाव से पहले हमने कहा गया था ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आएंगे। चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद 1 हफ्ते में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया। वो यहाँ भी लागू करेंगे, हमने छत्तीसगढ़ में लागू किया, राजस्थान में लागू किया। तो ये है जो कांग्रेस जो बोलते हैं वो करते हैं। तो जो भी घोषणाएं हैं और भी बहुत है, लेडीज के लिए भी शादी मुबारक 1.6 लाख किया, 1.6 लाख किया है। हम सोना दे रहे हैं 10 ग्राम, और बहुत सारे घोषणाएं हैं ऐसा जो बच्चों के लिए और बुजुर्ग लोगों के लिए, युवाओं के लिए हम क्या करेंगे। जो 2 लाख वैकेंसी है सरकार में, 2 लाख वैकेंसी है, वो हम भर देंगे। और आपको पता होना चाहिए कि केसीआर जब तेलंगाना फॉर्म होने के बाद कहा गया था कि हर घर में रोजगार देंगे, कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला कि युवा के खाते में जिसके पास रोजगार नहीं है 3,000 जाएंगे उनके खाते में, किसी को नहीं मिला है। उसके ऊपर 44 लाख बेरोजगार लोग हैं यहाँ। क्यों? क्योंकि वो TSPSC एग्ज़ाम लिखते हैं लेकिन वो पोस्टपोन होता है। उसके वजह से 3,000 युवा आत्महत्या भी किया है। तो ये है विषय हमारे। तो हम जो रोज़गार है और 20,000 टीचर का पोजीशन का वैकेंसी भी है, वो भी हम भरेंगे। तो ये बोल के मैं मेरे बात कम कर रही हूँ। तो जो मुझे लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो बोलते हैं करेंगे। और ये 6 घोषणाएं, गारंटी कार्ड आपको 100 नहीं 200% हम आने के 1 हफ्ते के बाद शुरुआत करेंगे। और ये हमको गारंटी दे रहे हैं हमारे जो MLA कैंडिडेट है राम मोहन रेड्डी जी है, वो भी कह रहे हैं, उनका भी फोटो है यहाँ। और सबको नाम सब लिख के हम देते हैं, जिसके पास रखेंगे उनको स्पेशली मिलेंगे। ये गारंटी कार्ड सबको रखना पड़ेगा अपने घर पे, अपने दुकान पे, जहाँ जहाँ उनको मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं पहले यहाँ पे डॉक्टर राम मोहन रेड्डी साहब का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे बात करने के लिए बात करने का मौका दे रहे हैं। आपको पता है कि तेलंगाना TRS ने क्या वादा किया था। जब तेलंगाना स्टेट बनेगा वो बोले कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगे। बिल्कुल, ये गद्दार हैं, ये अपना बात दे के मुकर गई है। और ये TRS जो पार्टी है BJP की B टीम है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज BRS पार्टी छोड़ के क्या अलीम और उनके साथी, सैकड़ों साथी जो आज राम मोहन रेड्डी साहब की सदारत में कांग्रेस ज्वाइन हुए हैं। और आपको पता है कि BRS को वोट देने का मतलब BJP को वोट देना है। ये समझिए, अक़लियतों को समझा रहा हूँ। ये खुसूसन मैं ये बोल रहा हूँ कि वोट मत बांटिए। एक अक़लियत का वोट जो BRS को जाएगा वो समझो BJP को जा रहा है। आप समझाइए, मोहल्ले में जाइए, हर जगह जाके समझाइए। मैं अक़लियतों को, नौजवानों को समझा रहा हूँ, वोट ज़ाया ना कीजिए। एक तरफा वोट करना है। वो एक तरफा वोट किसे करना है? डॉक्टर राम मोहन रेड्डी साहब को करना है, कांग्रेस पार्टी को करना है। 3 तारीख को कांग्रेस को यहाँ पे हुकूमत आनी है। उस हुकूमत आनी है और अच्छे ये 6 गारंटी हैं कांग्रेस के, जो कर्नाटका में 5 गारंटी दिए थे, लेकिन यहाँ पे और एक गारंटी ज़्यादा दे रहे हैं। और आपको 200 यूनिट पावर मिल रहा है, 200 यूनिट फ्री पावर मिल रहा है। तो देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार अगर कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो बहुत नौजवानों के लिए बहुत मुश्किल है। आज काम नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई आसमान पे छू रही है, फिरका परस्ती ताकतें। आज क्या, अब कर्नाटक में आप देखें क्या क्या हुआ, हलाल, हिजाब, अक़लियतों की कितनी तकलीफ हुई। आज चैन से है। आज कर्नाटक के अंदर बहुत अच्छी हुकूमत है कांग्रेस पार्टी की, सिद्धरामैया जी की सदारत में और DK शिवकुमार की लीडरशिप के अंदर बहुत अच्छी हुकूमत है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आज सब यहाँ की पेरगी की आवाम को कि डॉक्टर राम मोहन रेड्डी साहब को अपना वोट दीजिए और जिताइए। పార్టీలో చేరిన వారిలో పరిగి మస్జిద్ కమిటీ నాయబ్ సదర్ మహమ్మద్ సైమీయుద్దీన్, అబ్దుల్ కరీం, MD